Everyone, welcome back once again to my channel Insightful Maths. In today's session, we are going to discuss the topics which are there in chapter number 1 of class 8. The name of the chapter is Rational Numbers. You are already aware of this topic, what are rational numbers, right? And how they are connected to other set of numbers that you have already done. If still there is any confusion, I have already made that detailed video for class 7, so you may go and watch that. I am going further the new topics which are there in this chapter and which are going to help you in solving the exercise questions. Okay, so let us go ahead with the topics. We are going to talk about the properties of the rational numbers. You can see here the properties are listed. So we are going to discuss them one by one. आपको सिर्फ प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी? इफ इट इज रिलेटेड टू रैशनल नंबर्स यू कैन आंसर इट अकॉर्डिंगली. समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड अबाउट इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो इफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी, so basis the language and whatever is being asked to you, you can answer it correctly. So let's talk about the first property, that is closure property of, I'm talking in context of rational number first. So first one we are going to talk about closure. Closure, as the name itself is suggesting, that means in the same category. Close, there is nothing new in that. Let us understand it using an example. If I have one apple here and one apple here, I have one banana, and let's say we have a mango and something like that, right? Different fruits we have. If I have to categorize them, categorize as in if I have to put them separately, different fruits, let's say in different shelf, तो आप क्या करोगे? आप apples को एक साथ put करोगे, you will be keeping the bananas separately and you will be putting the mangoes separately, right? It goes like this. This is one category of fruits, this is another, and this is another, right? In the same manner, closure property says that if you add, subtract, multiply, or divide. If I talk about rational numbers, if we add, subtract, multiply, and divide the rational numbers, if the final answer of addition is known as sum, answer of subtraction is known as difference, answer of multiplication is known as product, and answer of division is known as quotient. ठीक है, तो अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, अगर आपका फाइनल आंसर भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही है, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज बीइंग फॉलोड. लेट अस टेक एन एग्जांपल. पहले आई एम गिविंग यू अ स्मॉल रिकैप ऑफ द रैशनल नंबर. कोई भी नंबर जो हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर p and q they both belongs to the category of integer. This is the symbol of belongs. Okay, this belongs to the category of integers and the denominator is not equal to 0. ये एक रैशनल नंबर होता है. अभी तक जितने आपने कैटेगरीज पढ़ी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ये सारे के सारे रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं. ठीक है, रैशनल नंबर की कैटेगरीज में ही आते हैं. अब लेट अस सी इफ this one, if under this operation addition, if the closure property is being followed or not. तो हम क्या करेंगे, मैं चारों ऑपरेशन के लिए आई एम जस्ट सेपरेटिंग इट आउट सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ वन बाय वन. पहले हम देख रहे हैं फॉर सम. एक रैशनल नंबर है 1/2, दूसरा रैशनल नंबर है मान लो -3/2. If I add these two rational numbers, denominator is already same. You can have as many example. I'm just taking one for your clarity. Denominator is 2. 1 plus -3 is what? That is -2. And -2/2 is either -1 or -1/1, which is again a rational number. आप अपना कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. आप देखोगे जब आप दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो तो योर फाइनल आंसर इज अ रैशनल नंबर ओनली. ठीक. आफ्टर एडिशन लेट अस टेक सब्ट्रैक्शन. आई एम हैविंग 3/4. let's say another one is 1/4.
If I'm subtracting two rational numbers, denominator is 4, 3 minus 1 is 2 and the answer is 1 by 2, जो दोबारा से एक rational number है. Now take the product 1 by 2 into 3 by 4. कोई भी random आप number ले सकते हो, it could be positive, negative, ये सारे rational numbers ही हैं. 1 into 3 is 3, 4 into 2 is 8. Answer is 3 by 8, जो दोबारा से एक rational number है. अब हम क्या करते हैं? Let us take the division. The division of two rational numbers. We need to see if it is a rational number or not. For example, numbers. One rational number is 1 by 2. Divided by another rational number is minus 3 by 4. We know how to divide a rational number by rational number. First one as it is, multiply the reciprocal of another one, 4 upon minus 3. 2 and 4 cancel, your final answer minus 2 by 3. यहाँ पर तो ठीक है, आंसर हमारा rational number आया है ना. But जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे, even if we get one single exception wherein the answer is not a rational number, that operation does not follow the closure property. आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी वैल्यू, you will be getting the answer as a rational number only. But for the case of division, if I would have taken the example, let's say this one, 1 by 2 divided by 0. Is 0 a rational number? Yes, of course, 0 is a rational number because 0 can be written as 0 by 1. ये rational number ही होता है. But division by 0 is not defined. We know that. Any number dividing by 0, it's not defined. So how can the answer be rational number? है ना, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है. इसका जो आंसर आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. तो ये रैशनल नंबर तो नहीं आया है ना. सो दैट मीन्स रैशनल नंबर आर क्लोज्ड. ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, ये कौन कौन से ऑपरेशंस में फॉलो करती है? फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन. अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी अ रैशनल नंबर. बट दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ डिविजन. Why? I have given you the example. There is one exception, 0. 0 एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम 0 से डिवाइड करते हैं आंसर रैशनल नंबर नहीं आता. दैट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. Let's move now to the second property, that is commutative property. Second one, that is commutative. पहले commutative का मतलब समझ लेते हैं, then we'll go for the example. Commutative means अगर मेरे पास दो rational numbers हैं a और b, a multiplied by b या फिर a plus b, this is equal to b multiplied by a और b plus a. अब इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं, आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, उनका पोजिशनल में कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू ऐड एंड मल्टीप्लाई देम इन एनी ऑर्डर, द आंसर रिमेन्स द सेम. ठीक है. only under two operations commutative properties being followed, for addition as well as for multiplication. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये फॉलो नहीं करती. आई विल शो यू यूजिंग द एग्जांपल्स. अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है 1 by 2, अनदर रैशनल नंबर इज 3 by 2. आप इसको ऐड करोगे, आंसर क्या आएगा? 4 by 2 और फाइनल 2. अब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ. 3 by 2 plus 1 by 2, आंसर दोबारा आया 4 by 2 which is 2. कोई फर्क है आंसर में? नो. We can add them in any order, answer is same. In the similar manner, if I would have multiplied it, 2 into 2 is 4 and 2 by 6 is 1 by 3. अब मैं इसका order change कर देती हूँ. 2 by 6 is again 1 by 3, है ना. तो if you multiply and add the rational numbers in any order, the answer remains the same. अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा क्यों नहीं होता. राइट. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन and division. Let's say the first rational number is 3 by 4. Subtraction minus 1 by 4.
4 is common, 3 minus 1 2, 2 by 4 is 1 by 2. अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ. पहले 3 by 4 में से 1 by 4 माइनस किया था, अब मैं 1 by 4 में से 3 by 4 माइनस करती हूँ. 4 is common, 1 minus 3 is minus 2 by 4 which is equal to minus 1 by 2. यहाँ पे आंसर था +1/2, यहाँ पर आंसर है -1/2. Positives and negatives are never equal to each other, right? Negatives are always lesser than the positive. आंसर सेम नहीं आया. So property, this commutative property doesn't hold true rational numbers for subtraction. अब हम देखते हैं commutative property division में होता है. 1/2 divided by 3/4. which is 1 by 2 into 4 by 3. Answer is 4 by 6 and the simplest form is 2 by 3. ठीक है. अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करती हूँ. 3 by 4 divided by 1 by 2 which means first one remain the same, reciprocal of another one. This is answer is 3 by 2. आप देखो पहले आंसर आया था 2 by 3, अब आंसर आ रहा है 3 by 2. दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. उल्टा है ना एक दूसरे का. सो दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आप दो रैशनल नंबर्स हैं आप उसका ऑर्डर चेंज करते हो इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आंसर सेम आता है, बट द प्रॉपर्टी डजंट होल्ड ट्रू अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन बिकॉज if we change the order, the answer, the final value is also changing, right? So this is about the commutative property. Next property we have is associative property. ठीक है. Commutative and associative, the only difference is commutative में हमारे पास सिर्फ दो ही numbers होते हैं, associative में we have 3 or more than 3 numbers. ठीक है. Let's take an example. All right. Okay. So the third property that we are going to discuss is associative property. Let's see, we have three rational numbers A, B and C. मैंने अभी क्या बोला, commutative और associative बिल्कुल सेम है. The only difference is of how many rational number. Commutative में सिर्फ दो numbers हैं, associative में minimum 3 तो होंगे ही, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं but minimum 3 are there. हमने commutative में क्या बोला था, that holds true for addition and multiplication, that does not hold true for subtraction and division. The same rule is applicable for associative as well. अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर हैं, आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड और मल्टीप्लाई करो, योर आंसर विल रिमेन द सेम. अब इसका क्या मतलब है, A इंटू बी इंटू सी, मुझे इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. अब ये मेरी मर्जी है, मैं कोई भी 2 नंबर पहले पिक कर लूँ, या फिर अगर मुझे इन 3 नंबर्स को ऐड करना है, इट इज माई चॉइस, आई कैन पिक एनी 2 नंबर फर्स्ट. ठीक है. सो दैट मीन्स A इंटू बी इंटू सी, it is either A into B multiplied first and then C or can be. देखो यहाँ पे हमने पहले B और C को मल्टीप्लाई किया बाद में A, या हमने AB को पहले मल्टीप्लाई कर दिया बाद में C. Similarly A plus B plus C, that is A plus B plus C. मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, that will make more sense for you. For example, I have 1/2 plus just a minute, 1/2 plus 3/2 plus let's say 7/2. मुझे इन 3 रैशनल नंबर को ऐड करना है. अभी मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, ठीक है, मैं इसको बाद में लूंगी. So first of all the bracket has to be solved. 3 plus 1 is 4, this is 4/2. 7/2 बाहर है, अब इसको भी ऐड कर दो. 7 plus 4 is 11/2. आंसर आया 11/2. अब हम क्या करेंगे, तीनों सेम हमारे पास रैशनल नंबर है, पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया था ना, अब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ. लेट्स सी इफ आंसर विल कम सेम और डिफरेंट. फर्स्ट वाला ऐसे ही है, आई एम फर्स्ट एडिंग 3/2 एंड 7/2. First one as it is plus, now 7 plus 3, that is 10/2. Denominator same, 10 plus 1 is 11. Is there any difference in the answer?
देर इज नो डिफरेंस, राइट, आंसर रिमेन्स द सेम। यही एक प्रॉपर्टी है, यू नो, आई मीन दिस इज ऑल अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने कम्यूटेटिव में देखा था ना, दो नंबर को किसी भी सीक्वेंस में ऐड या मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम। द सिमिलर गोज फॉर एसोसिएटिव। तीन या तीन से ज्यादा जब रैशनल नंबर आपके पास हो और वो ऐड और मल्टीप्लाई हो रहे हो, आप किसी भी ऑर्डर में ऐड और मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर विल बी सेम। बट इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अगर आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सीक्वेंस चेंज करते हो, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ एडिशन as well as multiplication. Okay, let's now move to the next property that we have after associative. पहले मैं आपको easy वाली बता देती हूँ, because distributive वाली का I will be taking few examples as well. Additive identity, additive inverse, पहले इसकी बात कर लेते हैं। additive identity, एडिटिव का मतलब वी आर एडिंग समथिंग। आइडेंटिटी आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स व्हाट हैज टू बी एडेड टू द गिवन नंबर सो दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर रिमेन सेम। उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो आइडेंटिटी है, दैट शुड नॉट बी चेंज। अगर मेरे पास एक नंबर 2 है, 2 में आप क्या ऐड करोगे कि इसकी वैल्यू 2 ही रहे? इट इज 0। मेरे पास -2 है, आप इसमें क्या ऐड करोगे कि ये -2 ही रहे? दैट इज 0, राइट। सो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ नंबर्स, मे इट बी इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, रैशनल नंबर, it is always 0, because any rational number when added to 0 does not lose its identity and the answer remains the same, ठीक है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द गिवन रैशनल नंबर, आंसर इज ऑलवेज 0, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अगेन एडिटिव का मतलब कुछ ऐड करना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स मतलब प्लस के साइन में द ऑपोजिट ऑफ एडिशन। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एडिशन? दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, इसका इनवर्स क्या होगा? +2 का उल्टा होता है -2, -3 का उल्टा होगा +3, राइट। सो एडिटिव इनवर्स इज अ नंबर which when added to the given number, मेरे पास एक नंबर है 3, इसमें इसका उल्टा ऐड कर दो, सो आंसर क्या मिलेगा? 3 + -3 दोनों कैंसिल, आंसर इज 0। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है विच इज द ऑपोजिट ऑफ द गिवन नंबर। जब हम दोनों को ऐड करते हैं, फाइनल आंसर इज ऑलवेज 0, ठीक। तो अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है -2/3, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? इनवर्स जैसे ही दिमाग में आए ना, व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स इज द ऑपोजिट साइन। सो इट इज -2/3, माइनस का ऑपोजिट क्या होता है? इट इज +2/3। सो -2/3 +2/3, आंसर 0 हो गया। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर इज द सेम रैशनल नंबर विद with an opposite sign, ठीक है। So I am writing few questions here. I request everybody to please put the answer in the comment option, ठीक है। I request please do follow this pattern. If you are watching this video, if you are following this video, that means you have inside, you know, in your brain that you need to learn a topic. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, अगर आप आंसर नहीं करोगे, then there is no point watching it as a movie, ठीक है। Okay, question number 1. What is the additive identity? Additive identity of A part 3, B part 4/5, C part -3/8. Additive identity. Question number 2. What is the additive inverse? आपको additive inverse बताना है। A part additive inverse of 2/8 and B part additive inverse of -4/14. These are the questions you have to do and write the answers in the comment option, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्टर एडिटिव आइडेंटिटी वी हैव सीन, एडिटिव इनवर्स वी हैव सीन। अब हम आ जाते हैं द सिमिलर आइडेंटिटीज फॉर द मल्टीप्लिकेशन।
अभी हमने एडिशन पे देखा है. नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. हम सिर्फ कॉमन सेंस लगाएंगे. एडिशन में हमने देख लिया ना, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आप क्या ऐड करोगे कि वैल्यू रिमेन्स द सेम. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव मीन्स आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वैल्यू रिमेन्स द सेम. 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो 2 ही रहे. 4/7 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये 4/7 ही रहे. एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. आंसर हियर इज 1. किसी भी कैटेगरी के नंबर्स हो, अगर आप उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, द आइडेंटिटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम. नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती. ठीक है. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर इज 1. Multiplicative inverse, it is the reciprocal. It is the reciprocal. Additive inverse में हमने क्या किया था, सेम रैशनल नंबर विद द ऑपोजिट साइन, है ना. और जब दो रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, उसको एडिटिव इनवर्स से ऐड करते हो, आंसर 0 आता है. हमने अभी अभी देखा था, अगर आप एडिटिव इनवर्स उस नंबर में ऐड करते हो, फाइनल आंसर 0 आता है. अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आता है. अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है 2/3, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने अभी अभी बताया, दैट इज रेसिप्रोकल. सो 2/3 का उल्टा क्या होता है, 3/2. अब आप देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 3 3 2 2 कैंसिल, फाइनल आंसर इज 1. इसका मतलब whenever any rational number is multiplied by its multiplicative inverse, the final answer is always 1. ठीक है. Multiplicative identity 1. Multiplicative inverse is a reciprocal. Additive identity is 0. Additive inverse is the same number just with the opposite sign. ठीक. Now coming to one of the most important properties, that is distributive property. इसको ध्यान से देखेंगे. Do not need to, you do not need to rush, no need to get confused. अगर मेरे पास 3 रैशनल नंबर हैं A, B, C, ध्यान से समझना, which are placed like this. Multiplication sign outside the bracket. ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन ही होना चाहिए. अगर ये प्लस माइनस डिवाइड होगा, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव. दो कॉम्बिनेशन बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, आउटसाइड माइनस, इनसाइड प्लस. आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन, इनसाइड प्लस. आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन, इनसाइड माइनस. बाहर तो मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है. ठीक है. सिर्फ यही दो कॉम्बिनेशन विल गिव यू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला a है ना, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों नंबर के बीच में. पहले हम a को b को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल a इज मल्टीप्लाइड विद v. इसको एक ब्रैकेट में डाल दो. अगर यहाँ पर प्लस है, आप प्लस डालो. अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, आप माइनस डालोगे. नाउ a विल बी मल्टीप्लाइड विद c. बाहर मल्टीप्लिकेशन है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो अनदर ब्रैकेट इज a इंटू c. अब इसका क्या मतलब है, लेट्स सी एन एग्जाम्पल. इफ आई हैव अ नंबर -3/4, it has to be multiplied with 5/4 plus 1/4. ठीक है. क्वेश्चन कहता है कि इसकी वैल्यू जो होगी ना, द प्रॉपर्टी सेज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जो बाहर वाला नंबर है ना, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. चाहे मैं इस तरीके से कैलकुलेट करूं या मैं ऐसे कैलकुलेट करूं, आंसर सेम आएगा. मैं दोनों तरीके से कैलकुलेट करके दिखाऊंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड दीज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव से पहले मैं इसको -3/4 को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ. आउटसाइड नंबर मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट वन, -3/4 मल्टीप्लाइड विद 5/4. दोनों नंबर के बीच में एक प्लस साइन है, पुट अ प्लस साइन. नाउ द सेकेंड ब्रैकेट. सेकेंड ब्रैकेट में अगेन आउटसाइड नंबर मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड वन. अब दोनों का वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करते हैं. एज पर बॉड मास, मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रही हूँ. एज पर बॉड मास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है. सो -3/4 एज इट इज, मल्टीप्लाई 5 + 1, दिस इज
6/4, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 6 into 3, it is 18. 4 into 4 is 16. 2 9s are 18, 2 8s are 16. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है -9/8. ठीक है, जो मैंने बॉड मास से सॉल्व किया. अब मैं देखती हूँ राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू है. अगेन मैं इन दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली सॉल्व करूंगी और फिर उनको मैं ऐड करूंगी. ठीक है, 5 into 3 -15/16 प्लस -3/16. प्लस और माइनस में माइनस डोमिनेट, सो दिस इज -15 -3/16 -18/16. देखो यहाँ -18/16 आया था. द सिंपलेस्ट फॉर्म इज अगेन -8. चाहे मैंने ऐसे सॉल्व किया या मैंने सेपरेट किया, आंसर इज कमिंग द सेम. दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, one number outside multiplying with the sum of two rational number in or the difference, you can solve it like this. Outside number will be distributed to both. ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमें क्वेश्चंस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये सॉल्व करना है, -1/3 इंटू 2/4 प्लस -1/3 इंटू 1/4. फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे सॉल्व करना है. अब आप देखो, लेट अस सी हाउ डू वी टेक कॉमन. ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इज इट कॉमन? एक जैसा है ना. इसको अगर मैं a मानती हूँ, ये भी a है. ये नंबर अगर ही मैं b मानूं, ये नंबर मैं c मानूं, तो दैट मीन्स इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड ऐसा कुछ देखा था ना. तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये जो नंबर कॉमन है ना, इसको आप बाहर निकाल लो. ये बाहर, मल्टीप्लाई इज ऑल्सो कॉमन, ये भी बाहर. जो चीज आपने बाहर निकाल ली ना, फॉर अ टाइम बीइंग जस्ट इग्नोर इट. हम इसको बाहर निकाल चुके हैं, हमारे लिए दिस इज वैनिश्ड फ्रॉम हियर. इसको हमने कॉमन ले लिया ना बाहर, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे. कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारे पास, b प्लस c. तो आपके ब्रैकेट में आएगा b प्लस c. अब मुझे ना ये अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करने की जरूरत नहीं है. आई कैन पुट अ शॉर्टकट. a क्या था मेरा, -1/3. आई विल पुट इट हियर इनटू b है मेरा 2/4 प्लस c है मेरा 1/4. 2 plus 1, so it is -1/3 into 3/4. 3 cancel, final answer is -1/4. See how easily we are able to get our answer. ठीक है, this is one of the simplest question that I could take to make you understand this identity. ठीक है, so this is all about the properties of rational numbers which are there in this chapter number 1. In the second video for chapter number 1, we are going to discuss the examples which are there in NCERT along with the questions, and we'll be able to finish the chapter. ये बहुत छोटा chapter है. So if you have any doubts from maybe grade 7 which you are still unable to clear, please put it in the comments. I'll make sure I will take all those doubts during my next video for while discussing the answers of the exercise. Okay. Thank you so much for watching, and if you have not liked and subscribed to my channel, please do it right now. Okay, and please press the bell icon so that you get the notifications also whenever I post the new videos. Take care and happy learning. See you.